everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaste to all of you, and I hope you all are doing great in your life. So guys, this video is all about, but video start करने से पहले it's just a humble request, please don't forget to like this video if you really like it, share and subscribe my YouTube channel. So this video is all about your SIN number. Like if you want to apply for your SIN number through online, you have to fill your SIN number application form, and for that reason this video is very important because आप जो भी फॉर्म फिल करते हो वो सही से फिल होना ज़रूरी है, because the person who are looking for your SIN number or looking for your SIN application form, if that person doesn't have much time, so एक गलती की वजह से you might lose approximately 1 month period of time. yes, आपका जब SIN नंबर आना होता है तो उसमें 20 से 30 दिन लग जाते हैं, तो एक छोटी सी गलती की वजह से you might lose that much of time, which is very important. तो मैंने जब अपना SIN नंबर अप्लाई किया था, I opted just one option, that was online, but the condition was different at that time, so I had to visit to Canada service as well. तो जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही थी, I had encountered one thing which was very annoying, and that was my last name, because मैं इंडिया में ही अपना मतलब हर डॉक्यूमेंट पे मैं अपना फर्स्ट नेम ही यूज़ करती हूँ. सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव माई लास्ट नेम, इट्स जस्ट लाइक आई डोंट यूज़ माई लास्ट नेम, और वो चलता ही आ रहा है. लेकिन इन कैनेडा it is quite obvious that they always ask for your last name, they prefer your last name. तो अगर आप भी you are same kind of me, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. एंड व्हेन यू आर फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस टाइम में थोड़ा सा अनोइंग होता है. तो उस टाइम पे आप क्या फिल कर सकते हो, कैसे फिल कर सकते हो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. सो व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले आई विल टाइप सोशल इंश्योरेंस नंबर कैनेडा. Okay, once we click on that, you will find here the site, and here you can click on how to apply to check the different options. So they have mentioned here that you can apply online or by mail. So most of you can wonder like what is that by email. So let's see what is this. So जब भी आप by mail apply करना चाहोगे, so you need their address, Service Canada. So here is the address is provided. इसमें आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट दे वांट टू सी, और उसको एक एनवलप में डाल के ऊपर से उनका एड्रेस लिख के मेल बॉक्स में ड्रॉप करना होता है. लेकिन हमें जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर SIN. सो क्लिक हियर एंड यू विल फाइंड दिस पेज. दिस इज योर सोशल इंश्योरेंस नंबर एप्लीकेशन. सो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है. यू कैन सी हियर 0% बिकॉज वी हैवंट डन एनीथिंग yet. So first of all, here is the application type. What kind of application you have? It's first, ये आपका पहला सोशल इंश्योरेंस नंबर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको अपडेट करना है, करेक्शन करवानी है, कंफर्मेशन के लिए, लीगल चेंज ऑफ नेम के लिए है, चेंज ऑफ स्टेटस है, और वट एवर दे हैव रिटन हियर. सो वी विल सेलेक्ट फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर. Now let's see, this is all the information that you have to fill. First is first given name. First given name means your first name. For example, my name is Priya. Then what is your family name at the birth? Family name at the birth means what is your last name, what is your surname. तो यहाँ पे मैं फिल करती हूँ गुप्ता is my last name, and then other given name. So this is not mandatory, this is mandatory, so we have already filled it, but this is other given name and other family name, this is not important. So हम यहाँ पे fill करेंगे family name. Family name is again your last name that we have already entered that Gupta, so हम यहाँ पे भी Gupta enter कर देते हैं. And then what is my date of birth? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मंथ, डेट, and your daytime telephone number, your evening telephone number. So daytime is mandatory, evening telephone is not mandatory. And what is your language of correspondence? So that is English. Applicant's gender, so I will fill here female, and check if the applicant is twin.
और ट्रिपलेट, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर ऐसा कोई सीन है तो। एंड देन एप्लीकेंट्स वर्थ प्लेस, सो यहाँ पे मैं फिल करती हूँ वेंगलोर, country obviously India, and state that is Karnataka. I hope I have a written right spelling. And then in care of, that is your mailing address, which we will fill after filling the right side of section. So okay, यहाँ पे हमने family name at worth हमने fill कर दिया है. अदर फैमिली नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है. अब आते हैं एप्लीकेंट्स पेरेंट. अब हमें यहाँ पे पेरेंट्स का एंटर करना है, तो यहाँ पे दो फील्ड है. तो मैंडेटरी फर्स्ट, ये जो 2 फील्ड है ये मैंडेटरी है, ये आप छोड़ भी सकते हो. तो यहाँ पे मैं फिल करती हूँ, जैसे मैं अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल कर सकती हूँ, सुरेश. एंड लास्ट नेम ऑब्वियसली गुप्ता. यहाँ पे मैं अपने मदर का नेम फिल कर सकती हूँ, बट इट इज़ टोटली अप टू यू. इफ़ यू वांट यू कैन फिल, अदरवाइज यू कैन लीव इट. सो मैं यहाँ पे फिल करूँगी सुनीता गुप्ता, लास्ट नेम. ओके. फैमिली नेम एट वर्थ जो होता है वो हमारा लास्ट और सन नेम होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया. अब यहाँ पे हम फिल करेंगे स्टेटस. सो स्टेटस कैनेडियन सिटीजन है, रजिस्टर्ड इंडियन है, पीआर है, टेम्परेरी है. तो अगर आप पीआर हो तो आप पीआर अप्लाई परमानेंट रेजिडेंट फिल करोगे. अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो, मीन्स आप स्टडी वीज़ा पे, तो आप टेम्परेरी रेजिडेंट फिल करोगे. Then please indicate the type of primary identity document you will submit with your application. तो आप क्या सबमिट करवाओगे? आप वर्क परमिट दोगे, स्टडी दोगे, विजिटर रिकॉर्ड दोगे, डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी कार्ड. तो ऑब्वियसली द बेस्ट वे इज टू पुट योर स्टडी परमिट. उसके बाद प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, वो आपको फिल करनी है कि आपकी जो स्टडी की जो एक्सपायरी डेट है वो कब है. तो यहाँ पे मैंने जैसे फिल कर दिया, रेंडमली मैं फिल कर रही हूँ. Are you the legal representative of an estate applying for a deceased individual? No, obviously no. And then social insurance number, did the applicant ever have a SIN number? मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली नो. कभी क्या होता है, कभी कभार हमें अपना जो सिन नंबर होता है वो हमें अपडेट करना पड़ता है, हमें फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उस केस में हम यहाँ पे यस करते हैं. लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट्स नो. और अगर यस होता तो हम यहाँ पे जो हमारा पहले का प्रीवियस हमारा सिन नंबर होता वो यहाँ पे हम फिल कर देते. अब हम आते हैं मेलिंग एड्रेस पे. तो मेलिंग एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी पे ही आपका सिन नंबर आएगा. इन केयर ऑफ, इफ डिफरेंट देन एप्लीकेंट्स नेम, अगर आप अपना नाम नहीं देना चाहते, किसी ऑनर का नाम देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑनर का नाम फिल कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपको अपना ही नाम रखना है, देन यू डोंट नीड टू फिल दिस यू नो दिस फील्ड. तो यहाँ पे हम अपार्टमेंट का नंबर डालते हैं, जैसे 28, नंबर एंड स्ट्रीट. यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हो, स्ट्रीट भी डाल सकते हो. तो मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रीट का नाम डालूंगी, दैट इज वैल्यू स्ट्रीट. ओके. सिटी यहाँ पे टाउन और विलेज वट एवर, सो मैं यहाँ पे डालूंगी ब्रैम्पटन. एंड कंट्री कौन सी है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी ऑब्वियसली कनाडा. और यहाँ पे स्टेट में डालूंगी ऑन्टारियो. यस. एंड योर पिन कोड. ओके. सो अभी हम एक बार से चेक कर लेंगे कि सारी फील्ड सही है. यस, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन. तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि यस, ये इन्फॉर्मेशन आई हैव रेड द प्राइवेसी स्टेटमेंट, एंड देन नेक्स्ट. सो यू कैन सी आपकी 50% आपने फिल कर दिया, अभी 50% रहती है. एंड प्लीज़ नोट, यू विल, आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है ये सारी एप्लीकेशन फिल करने के लिए. अगर आप छूट जाते हो देन यू हैव टू अगेन फिल इट. तो पहला है जी एक्नॉलेजमेंट, आर यू अप्लाइंग फॉर योर सेल्फ? यस. एंड प्रिंट योर नेम लाइक प्रिया गुप्ता. अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगी, पर पहले मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ. ठीक है. अभी आपको यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स. सो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करने होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज डिजिटल कॉपी ऑफ ओरिजिनल वैलिड प्राइमरी डॉक्यूमेंट. तो हम पहले चेक करते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस, एंड व्हाट इज़ दैट सपोर्टिंग लेटर.
सो यहाँ पे आपके प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हो। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे ये डिफरेंट काइंड के डॉक्यूमेंट जैसे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आप फिल कर सकते हो, आई मीन अपलोड कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ लैंडिंग, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट के लिए लाइक एज ए स्टूडेंट अगर आप सिन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई करना वर्क परमिट इफ़ यू हैव, और यू हैव टू अप्लाई फॉर स्टडी, यू हैव टू गिव योर स्टडी परमिट, तो आप अपना स्टडी परमिट दे सकते हो। तो ठीक है, आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गया योर स्टडी परमिट। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में आपको देना होता है अपना पासपोर्ट, जैसे कि पासपोर्ट कैनेडियन और फॉरेन, कैनेडियन प्रोविंशियल, ये आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ड्राइवर लाइसेंस इफ़ यू हैव दैट इज़ अनदर ऑप्शन, बट मेनली आपको अपना पासपोर्ट देना होता है। तो आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो होता है, this is proof of address. So where you can get this proof of address? A proof of address document that confirm address indicated in the online SIN application. A response to your request will be mailed to this address. तो ये अपने लिए कंफर्म करने के लिए आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस देखेंगे, क्योंकि कई बार जब आप फिल करते हो ना, जब आप एंटर करते हो फील्ड के अंदर एंटर करते हो तो कभी गड़बड़ हो जाती है। जैसे अगर आपका L6 आ रहा है, आपने L6T भर दिया, तो इस तरीके से गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने एक करेक्ट आपके मेलिंग एड्रेस पे सेंड करना है तो आपका वो प्रूफ ऑफ एड्रेस से उस चीज़ को कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट मस्ट बी इशूड बाय, या तो गवर्नमेंट किसी एजेंसी ने दिया हो, किसी कंपनी ने आपको दिया, किसी इंस्टीट्यूशन ने दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, या लैंडलॉर्ड, जब भी आप घर लेते हो अगर आपका लीज पे हो तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका वो है जो स्टूडेंट जस्ट लैंडेड इन द कनाडा, वो क्या करवाते हैं, अपनी जीआईसी को जो है वो एक्टिवेट करवाते हैं। तो उसके लिए वो वहाँ पे एड्रेस मांगते हैं आपका, और वो उसी टाइम आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बना के देते हैं जिसमें आपका एड्रेस होता है। तो बस वही डॉक्यूमेंट उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड कर देना है। एंड देन इज योर सपोर्टिंग लेटर। सपोर्टिंग लेटर आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, रिकॉर्ड ऑफ solemnization of marriage or marriage statement, divorce, legal change of name certificate. Yes, this is अगर आपका नाम चेंज हुआ है, जैसे आपका नाम पहले कुछ और था फिर आपने चेंज करवाया, तो उसकी इनको एक स्टेटमेंट चाहिए होती है कि आपका नेम जो चेंज हुआ उसका क्या प्रूफ है। एडॉप्शन ऑर्डर कुछ इस टाइप का, तो आपको वो देना होता है। बट मोस्टली इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर नाम चेंज हुआ हो तो आपको वो देना होता है, या मैरिज का सर्टिफिकेट जो भी है। ठीक है, ये वायदा भी जिन लोगों का सब कुछ सही है उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। जिनके नाम में चेंज होता है उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट स्टेप। सो अभी हमें पता चल गया जी कि हमें एक तो अपना स्टडी परमिट देना है, एक अपना पासपोर्ट देना है, और एक अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। ये नॉर्मल सिचुएशन के लिए, जैसे मेरा नाम जो है वो प्रिया गुप्ता है, नॉट जस्ट प्रिया, सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं है, मेरे दोनों नेम है, फर्स्ट भी लास्ट भी। तो यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल्स ऐड कर सकते हो। एक फाइल अपलोड कर दी, मैं यहाँ पे क्लिक करके दूसरी फाइल भी वैसे अपलोड कर दूंगी। तो वैसे आप अपने तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्लिक हेयर एंड देन सबमिट। आई विल नॉट सबमिट बिकॉज अगर मैं सबमिट करती हूँ तो एक डमी उनके पास एप्लीकेशन चली जाएगी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड फॉर दैम। तो मैं यहाँ पे ये कुछ भी सबमिट नहीं करूँगी। तो बस जस्ट इतना था, ये करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन उनके पास चली जाएगी। एंड दिस इज फॉर द पर्सन हु हैज़ देयर फर्स्ट नेम एज वेल एज लास्ट नेम। अब हम बात करते हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट नेम है लेकिन जिनका कोई लास्ट नेम नहीं है, वो कैसे अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे। इन द सेम वे क्लिक हेयर फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर, एंटर हेयर प्रिया, एंड नाउ लास्ट नेम यहाँ पे मैं प्रिया ही एंटर करूँगी बिकॉज आई डोंट हैव माई लास्ट नेम एंड आई कैन नॉट लीव दिस फील्ड एम्प्टी। तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे एंटर करना है, तो इसलिए मैं अपना जो मेरा फर्स्ट नेम है वही मैं यहाँ पे एंटर करूँगी।
तो आप यहाँ पे आपको जो है अपना पूरा नेम ही लिखना पड़ेगा बिकॉज दे प्रेफर योर लास्ट नेम एज वेल एज, तो आपने लास्ट नेम की जगह भी प्रिया लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ऐड फाइल में, जो मैंने आपको बताया था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट साउंड्स वेरी अनक्लियर व्हाई डिड यू पुट प्रिया प्रिया, दे माइट थिंक कि आपने गलती से प्रिया प्रिया पुट कर दिया है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी विच विल बी योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप उसकी जगह अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने पहले से ही यहाँ पे एप्लीकेशन पुट की थी बिकॉज मेरे को भी ये चीज़ करनी पड़ी थी, तो उस टाइम मैंने एप्लीकेशन जिसको आप बोलोगे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे अपना नाम डालिए, यहाँ पे अपनी स्ट्रीट, वैल्यू स्ट्रीट, ब्रॉम्पटन ओंटारियो, एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिए, डेट ऐड कर दी, रिस्पेक्टेड ऑफिसर, हैशटैग मैडम भी आप कर सकते हो, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सर्विस, कनाडा सब्जेक्ट क्या था, एक्सप्लेनेशन लेटर फॉर द गिवन एंड फैमिली नेम। Dear sir and madam, I am writing this letter to explain that why I needed to write Priya in both the first given name and family name box. I have only the given name on my passport, क्योंकि obviously आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट और लास्ट नेम वैसे ही लिखा होगा, आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट तो नहीं होगा, तो आपका सिर्फ प्रिया ही उसके ऊपर होगा। So that's why I have written that I have only the given name on my passport, that is Priya, and there is no family name or surname. So as I don't have family or surname, that is why I have put Priya in my family name box, because it doesn't allow me to leave this blank. Please accept my letter of explanation along with my submitted documents and approve my application for social insurance number. Please let me know if you have any question and concern. I hope this letter and my documents are sufficient for approving my SIN application. Thanks sincerely Priya and phone number. इस एप्लीकेशन से उनको क्लियर हो जाएगा कि आपने बार बार उसमें प्रिया क्यों ऐड किया है, एंड नाउ दे नो कि यस आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, आपका कोई लास्ट नेम है, एंड दैट्स वाई ये सारी चीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ही अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एंड बिलीव मी, ये चीज़ जब मैंने की थी तो उसके बाद मेरा जो सिन नंबर था वो मुझे मिल गया था। So I hope guys you really like this video. If you like this video then do like and share this video, because there are many people who don't use their last name, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। So please share this video with those people and please subscribe my YouTube channel। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।